Greeting dear students. I hope all of you have understood the introduction part of the chapter 6 life processes. So during that introduction part we discussed briefly about each and every step of the each and every process of life. So now we will discuss those processes one by one in detail. So the first process that we will discuss in detail is the nutrition. Now all of you are aware about the significance of nutrition in living organisms. The significance of nutrition in living organism is they will provide energy. कि न्यूट्रिशन से हमको क्या फायदा होने वाला है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको क्या फायदा होने वाला है. They will all get the energy to do any kind of work in which they are busy. So nutrition is essential for the production of एनर्जी. कि न्यूट्रिशन हमारे को किस लिए चाहिए, एनर्जी बनाने के लिए. और न्यूट्रिशन हमको मिलेगा किससे, बाय द फूड. सो न्यूट्रिशन वी विल गेट फ्रॉम द फूड दैट वी विल ईट. सो ऑन द बेसिस ऑफ कैपेबिलिटी टू मेक फूड दे न्यूट्रिशन और ऑर्गेनिज्म, कि देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म फॉलो द डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन. So organisms can be classified based upon the mode of nutrition they are following, or the question can also be like this: write the different types of nutrition, write the different mode of nutrition. So in that case we can classify them broadly into two categories, or the organism which follow the different mode of nutrition, they are classified into two types of organisms: autotrophs and heterotrophs. And the mode is called autotrophic mode of nutrition, हेट्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. तो ऑर्गेनिज्म जो खुद खाना बनाते हैं, दे कैन मेक देयर ओन फूड, दे आर स्पेसिफिकली कॉल्ड ऑटोट्रोप. डिपेंड अपॉन द अदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, दे आर कॉल्ड हेट्रोट्रोप्स. सो नाउ वी विल डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन द ऑटोट्रोपिक एंड हेट्रोट्रोपिक. So first we will discuss about the autotrophic mode of nutrition. So all of you are aware about the term that I have circled here is the photosynthesis. The term photo, wherever you find the term photo, means something that is related to the light. With the help of light, they are synthesizing food. And the simplest example that all of you are aware is the plant. So what is the feature of plant due to which they are under the category of autotrophs or autotrophic mode of nutrition? First is, what will plant do? Plant need carbon dioxide, plant need water in presence of sunlight, and in presence of chlorophyll they will produce C6H12O6 plus oxygen. So this is the basic equation for the process called photosynthesis. तो वो क्या कर रहे हैं प्लांट, वो अपना खाना खुद बना रहे हैं. वो कैसे बना रहे हैं अपना खाना खुद? दे आर यूजिंग द सिंपलेस्ट इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस विच आर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर. वो क्या कर रहे हैं, नेचर के अंदर जो एटमॉस्फेयर के अंदर जो सिंपलेस्ट इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है उनको वो यूज कर रहे हैं क्या बनाने के लिए, फूड बनाने के लिए. तो व्हाट आर दोस, क्वेश्चन कैन ऑल्सो बी लाइक दिस: व्हाट आर द इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस दैट प्लांट यूज टू सिंथेसाइज द ऑर्गेनिक सब्सटेंस? Here C6H12O6 is the organic substance. तो वो क्या यूज कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड they will take from the atmosphere, water they will take from the soil or ground, and they will use the sunlight, and that sunlight will be absorbed by the green pigment or the green color substance which is present in the leaf, which is called chlorophyll. तो क्या होगा, क्लोरोफिल क्या करेगा, सन की लाइट को एब्जॉर्ब करेगा. सन की लाइट क्या है, एनर्जी. कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को मिला देगा, और उसको मिलाने के लिए जो एनर्जी लगेगी वो कहां से आएगी, सन की लाइट से, और क्या बना देगा, ऑर्गेनिक सब्सटेंस. तो फ्रॉम दिस सिंपलेस्ट इनऑर्गेनिक सब्सटेंस प्लांट्स आर प्रोड्यूसिंग द बेसिक ऑर्गेनिक सब्सटेंस which can provide the energy to the living organism, which is here it is glucose and comes under the category of carbohydrate. And one more advantage of photosynthesis, the question can also be like this: what are the significance of photosynthesis? First it produce the glucose which will provide the energy, and one of the byproduct मतलब जो main product के साथ में बनता है, and the one of the main byproduct
is the oxygen, and all of you are aware about the significance of oxygen कि oxygen क्यों चाहिए हमको. So autotrophic वो होते हैं that can make their own food. How to write? Autotrophs are the organism which can make their own food by using the simplest inorganic substances like carbon dioxide and water, and they will convert the light energy of sun into the chemical energy. So I hope the basic theme is clear to everyone about the autotrophs. And now the next case is example. First example of autotrophs. I hope it is clear to everyone and all of you are aware about the plants. But there are certain bacteria which can also produce their food by using the same process of photosynthesis. One of the example that I have written here is the cyanobacteria. Cyan, which I have written here, is a type of color. The other name for this cyanobacteria is blue green algae. But algae is the specific term. Algae is the part of classification of plant. Algae जो होता है वो हम किसके लिए रखते हैं? प्लांट के लिए. But they are not the plant. तो MCQ में आपको कंफ्यूज करने के लिए पूछ सकते हैं कि cyanobacteria is a they will give blue green algae is a type of plant, bacteria, fungus, why? So blue green algae or cyanobacteria, it is a type of bacteria which can produce its own food. So I hope these autotrophs are clear to everyone. How plant produce their own food or nutrition in plant, that we will discuss later. Next is the second type of nutrition, that is the heterotrophic. An animal which follow this heterotrophic mode of nutrition, they are specifically called heterotrophs. तो heterotrophs और heterotrophic mode of nutrition is कि जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं and they will depend upon the other organism directly or indirectly. I have used this term directly and indirectly number of times. How it is directly? For example, the herbivorous animal. Herbivorous क्या करते हैं? वो घास खाएंगे, प्लांट को खाएंगे और उससे अपनी एनर्जी बनाएंगे. So they are heterotrophs. दूसरों पे डिपेंडेंट है. कैसे? डायरेक्टली दे आर डिपेंडेंट ऑन द ऑटोट्रोफ. फॉर एग्जांपल कार्निवोरस मीट ईटिंग एनिमल, लायन, टाइगर, वो क्या है? इनडायरेक्टली डिपेंड है ऑटोट्रोफ के ऊपर. मतलब प्लांट को कौन खाएगा? गोट. गोट को कौन खाएगा? टाइगर या लायन. तो एनर्जी कहां से आ रही है? डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. पहले डायरेक्टली एनर्जी प्लांट से किसमें गई? गोट के अंदर. फिर गोट को किसने खाया? टाइगर ने या लायन ने. उसके अंदर एनर्जी कैसे गई? इनडायरेक्टली. तो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी तो कहां से आ रही है? ऑटोट्रोफ. बीच में अलग अलग स्टेप्स हो सकते हैं. सो हेटरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. नाउ दिस हेटरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरी. फर्स्ट इज होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. We will discuss them one by one. So holozoic mode of nutrition, we are the simplest example of this. कि हम हैं, amoeba है, the other animal, dog, cat, buffalo, they are all under the category of heterotrophic mode of nutrition. और heterotrophic की कौन सी type के example है हम? Holozoic mode of nutrition. Now what is the holozoic mode of nutrition? Holozoic mode of nutrition have 5 steps. उसके 5 step होते हैं. टेक द एग्जाम्पल ऑफ योर सेल्फ. खुद का एग्जाम्पल लो. हम खाना कैसे खाते हैं? फर्स्ट वी विल टेक द फूड एंड पुट इट इनटू आवर माउथ. हम क्या कर रहे हैं? खाना लेते हैं, उसको अपने माउथ के अंदर डालते हैं, विच इज द फर्स्ट स्टेप, कि अपनी बॉडी के अंदर लेके जा रहे हैं. इंजेक्शन मीन पुटिंग द फूड इनटू आवर माउथ इज कॉल्ड इंजेक्शन. हमने खाने को डाला अपने माउथ के अंदर. सेकेंड इज द डाइजेशन. ऑल ऑफ यू शुड aware about the meaning of this term, which is called digestion. Digestion means conversion of complex molecule into simple molecule. कि हम जो भी खाना खाते हैं, the simplest component are the starch, protein, fat. वो क्या होते हैं? बड़े molecule होते हैं. तो हम क्या करते हैं? हमारी बॉडी क्या करती है? उस कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को किस में कन्वर्ट कर देती है? सिंपल मॉलिक्यूल के अंदर. तो आफ्टर द कन्वर्जन फ्रॉम कॉम्प्लेक्स टू सिंपल. अब वो पूछेंगे सिंपल में क्यों करते हैं? तो व्हाई इट इज कन्वर्टेड इनटू सिंपल? सो दैट
इट कैन बी एब्जॉर्ब इनटू आवर सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, कि ताकि वो हमारे ब्लड के अंदर जाए और ब्लड जो है वो सारे सेल्स के अंदर उसको क्या कर दे, ट्रांसपोर्ट कर दे। तो फर्स्ट स्टेप इज पुटिंग द फूड इनसाइड आवर माउथ, सेकंड इज द डाइजेशन प्रोसेस विल टेक प्लेस इनसाइड आवर बॉडी, स्टमक के अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एंड समवट इन द माउथ। तो डाइजेशन में हम क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स को सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देते हैं। नेक्स्ट स्टेप इज द एब्जॉर्प्शन। तो हमारी बॉडी के अंदर, ह्यूमन बीइंग में डाइजेशन कहाँ कहाँ पे होता है, माउथ के अंदर, स्टमक के अंदर, एंड द थर्ड इज स्मॉल इंटेस्टाइन। बट द मेन साइड वेयर डाइजेशन टेक प्लेस इज द स्मॉल इंटेस्टाइन। माउथ में और स्टमक में बिल्कुल रेयर, बहुत ही कम परसेंट में होता है। थर्ड स्टेप इज द आफ्टर द डाइजेशन कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस इज ऑलरेडी कन्वर्टेड इनटू सिंपल सब्सटेंस। कॉम्प्लेक्स को सिंपल में बदल दिया हमने, नाउ इट इज एब्जॉर्ब। और हमारे अंदर एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होता है, इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। नेक्स्ट इज द एसिमिलेशन। नेक्स्ट इज द एसिमिलेशन। द मीनिंग ऑफ एसिमिलेशन इज, हमने खाना खाया, उसको डाइजेस्ट किया, डाइजेस्ट करने के बाद उसको हमने सिंपल बेसिक यूनिट में कन्वर्ट कर दिया। बेसिक यूनिट में कन्वर्ट करने के बाद वो क्या हो गया, एब्जॉर्ब हो गया। एब्जॉर्ब होने के बाद वो क्या हो जाता है, ट्रांसपोर्ट हो जाता है और हर एक सेल के पास चला जाता है। फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोज। अब ग्लूकोज का सिर्फ यही काम नहीं है कि वो सिर्फ हमको एनर्जी प्रोवाइड करे, हमारे थोड़ी बहुत स्ट्रक्चरल यूनिट के अंदर भी वो इन्वॉल्व होता है। प्रोटीन, अब इतने सारे प्रोटीन होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, अलग अलग जगह पे अलग अलग प्रोटीन की जरूरत होती है अलग अलग स्ट्रक्चर बनाने के लिए। तो जो हमने एब्जॉर्ब किए थे प्रोटीन की बेसिक यूनिट, सेल उनको यूज करता है और अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसको यूज कर लेता है। assimilation is similar to the, for example, the wall making. वॉल हम किससे बनाते हैं, ब्रिक से, ईंटें लेते हैं। अब कोई क्या करता है, छोटी वॉल बनाएगा, कोई बड़ी वॉल बनाएगा, कोई अलग डिजाइन की वॉल बनाएगा, बट द बेसिक फंडामेंटल यूनिट इज द ब्रिक। तो वो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कितनी ब्रिक हमने यूज करनी है, किस तरह से यूज करनी है, सिमिलर टू दिस एसिमिलेशन, कि एब्जॉर्ब करने के बाद जो बेसिक यूनिट थी उनको हमारी सेल जो है अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यूज करता है, जो बनाना होता है वो बना लेता है। नेक्स्ट इज द इजेक्शन, कि जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर अनडाइजेस्टेड फूड बच जाता है, कि जो हमारी बॉडी ने डाइजेस्ट नहीं किया, एब्जॉर्ब नहीं हुआ, दैट ऑल विल बी रिमूव फ्रॉम द बॉडी एंड दैट स्टेप इज कॉल्ड इजेक्शन। एंड बी केयरफुल, इजेक्शन इज नॉट द एक्सक्रीशन। So these are the 5 basic steps of the holozoic nutrition. So they can also ask you about the difference between the holozoic and these two, saprophytic and parasitic. We will discuss later. First we will discuss the saprophytic and parasitic. So what is the saprophytic? Saprophytic or saprophytes are the organism which depend upon the dead decaying matter. For example, fungus. कि कई बार क्या होता है कि मान लो आपने ब्रेड है या आपकी जो रोटी है आप टिफिन में से निकालना भूल गए, स्कूल ऑफ हो गया, टिफिन के अंदर रोटी रह गई, लेकिन थोड़े दिनों के बाद निकालते स्मेल आती है, यू विल सी द ग्रीन कलर फंगस उसके ऊपर बन जाती है। तो दोज आर अंडर द कैटेगरी ऑफ सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। एग्जाम्पल्स आर फंगस, फॉर एग्जाम्पल ईस्ट, मशरूम्स दैट वी ईट। मशरूम्स पता होगा आप सभी लोगों को, मशरूम इज ए टाइप ऑफ सेप्रोफाइटिक ऑर्गेनिज्म। मशरूम कहाँ पे होते हैं कि फॉर एग्जाम्पल कोई प्लांट है वो खराब हो गया, सड़ रहा है वो, तो लकड़ी है वो गीली है थोड़ी सी, तो उसके ऊपर जनरली इस तरह के मशरूम आते हैं। मतलब वो क्या है, डेड डिकेइंग मैटर के ऊपर वो क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। नाउ फंगस, यीस्ट, मशरूम। नाउ हाउ इज दिस सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन टेक प्लेस, कि वो होता कैसे है एंड व्हाट इज द डिफरेंस। व्हाट वी डिस्कस ड्यूरिंग द होलोजोइक, सबसे पहले खाने को हमको अपनी बॉडी में लेके जाना पड़ता है, फिर बॉडी के अंदर उसको हम क्या करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं, कॉम्प्लेक्स से सिंपल में कन्वर्ट करते हैं। सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर क्या होते हैं, ये दोनों स्टेप मिसिंग होते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल लेट्स अज्यूम ये क्या है, ब्रेड है या फूड है, डेड डिकेइंग मैटर है, यहाँ पे क्या आ जाएगी, फॉर एग्जांपल फंगस है हमारी। फंगस क्या करती है, ये जो फूड है उसका, इस फूड को अपनी बॉडी के अंदर नहीं लेके जाती, अपनी बॉडी के अंदर ले जाके कॉम्प्लेक्स से सिंपल में नहीं बदलती। ये दोनों प्रोसेस, इंजेक्शन तो होता ही नहीं है, और जो डाइजेशन है कॉम्प्लेक्स को सिंपल में कन्वर्ट करना है, दैट विल टेक प्लेस आउटसाइड द बॉडी ऑफ द फंगस। वो क्या करते हैं, दे विल रिलीज द सर्टेन केमिकल ओवर द फूड। वो क्या करते हैं, जो हमारा फूड है उसके ऊपर कुछ एक केमिकल रिलीज करते हैं, कुछ एक एंजाइम्स रिलीज करते हैं। दोज केमिकल्स एंड एंजाइम विल do the digestion process.
कि वो एंजाइम और केमिकल क्या करेंगे, जो हमारा कॉम्प्लेक्स फूड है या ब्रेड है स्टार्च से बना होता है, उसको कॉम्प्लेक्स से सिंपल में कन्वर्ट करेंगे। तो जैसे ही इसके ऊपर जो डिकम्पोजिशन प्रोसेस होती है, सड़ना है, तो जब वो बाहर होगा, तो जब वो सिंपल उसमें कन्वर्ट हो जाएगा, लेटेजियम ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया, उसके बाद वो क्या कर लेगा, उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। रेस्ट ऑफ दी थ्री प्रोसेस एब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन विल रिमेन सेम, कि वो अंदर नहीं लेके जाएंगे बॉडी के अंदर, और जो डाइजेशन है कॉम्प्लेक्स से सिंपल में कन्वर्ट करने का, वो अपनी बॉडी के अंदर नहीं करते, वो बॉडी के बाहर करते हैं। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन होलोजोइक एंड सेप्रोफाइटिक। तो उसको कॉम्प्लेक्स से सिंपल में बदलेंगे, एज सून एज इट कन्वर्ट इनटू सिंपल सब्सटेंस इट विल बी एब्जॉर्ब एंड यूज अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, और वेस्ट प्रोडक्ट होगा उसको वो बाद में बाहर निकाल देंगे। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ nutrition. For example, all of you are aware about the yeast, which is used for the production of alcohol. Mushroom, which we use as a food. Not all the mushrooms can be used as a food, because some of the mushrooms are poisonous. Third under the category of heterotropic mode of nutrition is the parasitic mode of nutrition. अब parasitic mode of nutrition में क्या होता है, जो ऑर्गेनिज्म है वो दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट होता है, और जिस ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंडेंट होता है दैट ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड होस्ट। आई कैन गिव यू द सिंपलेस्ट एग्जांपल ऑफ दिस, कि आपने सुना होगा कि छोटे बच्चों के पेट में क्या हो जाते हैं, कीड़े हो जाते हैं, और उसकी वजह से वो क्या कर पाते हैं, ग्रो नहीं कर पाते। वो खाते हैं, उनको फूड उनकी बॉडी की ग्रोथ में पार्टिसिपेट नहीं कर पाता है। व्हाट आर दोज ऑर्गेनिजम्स? दोज ऑर्गेनिज्म आर द पैरासाइट्स, मतलब वो खुद कुछ नहीं कर रहे हैं, वो जो होस्ट बॉडी है जिसके पेट में कीड़े हो गए, पेट में नहीं, इंटेस्टाइन में होते जनरली, तो उसका वो जो खाना खा रहा है, डाइजेस्ट कर रहा है, उससे जो प्रोडक्ट बन रहे हैं वो किसके लिए चाहिए, होस्ट की बॉडी के लिए, लेकिन उसको यूज कौन कर लेता है, पैरासाइट। तो होस्ट की बॉडी को न्यूट्रिशन मिलता नहीं है, तो होस्ट का तो नुकसान ही नुकसान है, बट द पैरासाइट विल यूज दैट फूड एंड विल कंटिन्यू टू ग्रो। और जो पेट में कीड़े हम बोलते हैं वो कौन कौन से होते हैं, राउंड वॉर्म, पिन वॉर्म, टेप वॉर्म। So these are the three example according to their shape, roundworm, pinworm, tapeworm. तो ये पेट में कीड़े होते हैं, इंटेस्टाइन के अंदर जनरली होते हैं, जो हम खाना खाते हैं जिसके पेट में होंगे ये, they will use their food for the growth of their own. So these three are the parasites which are generally present inside the animals. Next is the one more example of parasite is the plasmodium. प्लाज्मोडियम इज द मलेरिया वेक्टर। क्या आपने सुना होगा कि मच्छर के काटने से मलेरिया होता है, बट द वेक्टर और द पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म फॉर द मलेरिया इज द प्लाज्मोडियम। तो प्लाज्मोडियम जो है वो हमारी लीवर सेल के अंदर और रेड ब्लड सेल्स के अंदर रहता है, और वहां पे उसको यूज करता है और उसको फूड की तरह, और दे एक्ट एज ए पैरासाइट। सो इन एग्जाम यू कैन ऑल्सो गेट ए क्वेश्चन, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ पैरासाइटिक प्लांट। Up to now, these are all the under the category of animals, plasmodium, roundworm, pinworm, tapeworm. इन तीनों के अंदर क्या है कि प्लाज्मोडियम, राउंडवर्म, पिनवर्म, टेपवर्म, दे आर इनसाइड द होस्ट बॉडी। ये सारे के सारे क्या हैं, इनसाइड द होस्ट बॉडी। आई हैव आल्सो रिटन वन मोर एग्जांपल, लाइस। लाइस आप लोगों को पता होगा, जुएं हो जाती है छोटे बच्चों के सर में, तो लाइस क्या है, वो बॉडी के अंदर नहीं जाते, वो एक्सटर्नल सरफेस के ऊपर रहते हैं, स्कैल्प पे होते हैं, और वहां से ब्लड को सक करते हैं, न्यूट्रिशन विच इज प्रेजेंट इन देयर इन द होस्ट ब्लड दे विल यूज एज देयर ओन न्यूट्रिशन। तो ये जो है ये बॉडी के अंदर नहीं होते, ये चारों जो हैं दे ऑल फोर आर इनसाइड द ह्यूमन और एनिमल बॉडी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन एग्जांपल ऑफ प्लांट विच इज ए पैरासाइट। एग्जांपल ऑफ दैट प्लांट इज कसकटा प्लांट, CUSCUTA। इन हिंदी इट इज कॉल्ड अमर बेल। तो अमर बेल क्या होती है, ये कसकटा प्लांट क्या होता है, दूसरे प्लांट के ऊपर बेल होती है, तो वो दूसरे प्लांट के अराउंड ग्रो करती है, और जो दूसरा प्लांट फोटोसिंथेसिस करके फूड वगैरह बनाता है उसको ये यूज करती है फॉर इट्स न्यूट्रिशन, खुद के न्यूट्रिशन के लिए। वो दूसरे प्लांट जो लगा हुआ है फोटोसिंथेसिस कर रहा है कि मेहनत कोई और कर रहा है, उसको यूज कोई और कर रहा है। दिस इज द मीनिंग ऑफ पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, कि एक का फायदा है दूसरे का नुकसान है। So these are the different modes of nutrition under the category of heterotropic mode of nutrition. So I hope this basic concept about the types of nutrition is clear to everyone. So what we discussed during this nutrition topic or type of nutrition, autotropic, heterotropic. So one more question that can comes in the exam is the difference between autotropic and heterotropic. They can make their own food, they depend upon the other. They make their food by the process called photosynthesis. They do not involve any kind of processes like photosynthesis. They use the sunlight, they do not use the sunlight. They use the simple inorganic substances to make the food.
तो वो क्या करते हैं, जो ऑर्गेनिक फूड ऑटोट्रोपिक बनाता है उसको ये यूज करते हैं. इन लास्ट डिफरेंस you can write the example plant, few bacteria. In heterotropic you can write amoeba, human being, dog, parasite, fungus. So they are all dependent upon the other organism. So I hope this basic concept of nutrition, the introduction part of the nutrition and the different types of nutrition, autotrophic and heterotropic, and the different subtype of nutrition are clear to everyone. If you still have any doubt, you can write in the comment section. So thank you students.